Hello children, how are you? I hope you would be fine in your houses with your family members. I'm also fine wherever I am. I'm also fine and I'm always ready to provide you study stuffs. In the same context, I am once again over here to give you a very much important topic in class 10th, mathematics, cross multiplication method. How to solve pair of linear equations in two variables, how to solve simple simultaneous equations, how to solve that. मतलब हम सिंपल सिमुल्टेनियस इक्वेशंस को कैसे सोल्व करें या पेयर ऑफ लिनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स को कैसे सोल्व करें, उसका एक थर्ड मेथड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है. इसके लिए मैं फिर आपके सामने उपस्थित हूँ. Guys, before coming to the point, let us discuss whatever we have taught, we have studied already, what you have been taught already. In the very first clip of this particular chapter, you studied a pair of linear equations in two variables are solved by two ways. First, geometrically, that is also known as graphically, and second, algebraically. Graphically, we came to know by drawing graphs, we came to know that three sorts of graphs, three types of graphs can be drawn. First parallel, second intersecting, third coincident, that we studied already. After that we studied algebraically. In algebraic method we studied first one substitution method, second one elimination method, and the third one we are going to start right now, that is cross multiplication method. So guys, you have to take your pen and paper and you have to start with me. So don't delay, just take your pen and paper because we are going to start a very much important topic, that is cross multiplication method. अब आइए इसको देखते हैं. तो आपको पता है कि a pair of linear equations कैसे लिखा जाता है in two variables. तो a1x plus b1y plus c1 is equal to 0 and a2x plus b2y plus c2 is equal to 0. This is the way by what we write pair of linear equations into variables. इस तरह से हम लोग लिखते हैं. ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड क्या है? तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का मतलब ही होता है कि क्रॉस करना. जैसे a1 मल्टीप्लाई होगा b2 से, a2 मल्टीप्लाई होगा b1 से, b1 मल्टीप्लाई होगा c2 से, b2 मल्टीप्लाई होगा c1 से. मतलब हम जैसे x और y के वैल्यूज निकालते थे, उन वेरिएबल्स का वैल्यूज निकालते थे, इसमें स्ट्रेट वे वी कैन कम टू दैट पॉइंट टू गेट द वैल्यूज ऑफ x एंड y. जस्ट यू सी, मैं आपको एक आसान सा मेथड तरीका बताता हूँ जिससे आपको याद करने की भी ज़रूरत नहीं है. आप लिखेंगे x, y एंड 1. x, y एंड 1 आपको लिखना है बस. और उसके बाद यहाँ b1 से शुरू करना है, क्योंकि x से शुरू करें तो यहाँ b1 से शुरू करेंगे. पहले लिखेंगे b1, उसके बाद c1, उसके बाद a1 के बाद फिर आ जाएगा यहाँ b1. मीन्स b1 से शुरू करके हम b1 तक जाएंगे. ठीक उसी तरह से यहाँ b2 से शुरू करना है, b2, c2, a2 एंड b2. ऐसे करने के बाद अब हम ऐसे क्रॉस, जैसा इसका नाम है, यू नो दिस इज known as cross multiplication method, then this cross is to be given. c1 is to be multiplied by a2 and c2 is to be multiplied by a1. Similarly a1 by b2 and a2 by b1. By this way we have to multiply. And further you see what is to be done, then this will be written here x upon x by, अब लिखेंगे किससे, तो b1 में c2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो b1 c2 माइनस b2 c1 कर देंगे इज इक्वल टू, अब y बाई लिखेंगे, y बाई तो c1 a2, चाहे a2 c1 कर लीजिए इसको, a2 c1. अब c1 a2 कोई लिखता है तो रॉन्ग नहीं लिखेगा, और a2 c1 भी लिखेगा तो रॉन्ग नहीं लिखेगा, लेकिन ये थोड़ा अल्फ़ाबेटिक लग रहा है इसलिए इसको मैंने लिखा. अब माइनस a1 c2, ये भी अल्फ़ाबेटिक है इसलिए लिखा, आप c2 a1 भी लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 1 अपॉन, फिर उसी तरह से a1 b2 माइनस a2 b1. सी दिस इज द रिलेशन दैट इज टू बी इस्टेब्लिश्ड. ये रिलेशन है, इसको इस्टेब्लिश करना है. क्या किया गया आपको ध्यान देना है. सबसे पहले आपको ये पेयर ऑफ लिनियर इक्वेशंस कैसे लिखे जाते हैं इसको लिखा गया. इसका फॉर्मेट a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0.
a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। एंड उसके बाद क्या किया गया, मैंने कहा कि मैं आपको एक छोटा सा सुंदर सा तरीका बताता हूँ जिसमें आप बिना याद किए इसको लिख सकते हैं। तो क्या क्या करेंगे, व्हाट विल यू डू, x y एंड 1, x इज फॉर वेरिएबल x, y फॉर वेरिएबल y एंड 1 फॉर दैट कांस्टेंट। तो अब चूंकि x से शुरू करना है तो यहाँ x को आप ढक लीजिए। उसके बाद क्या बचता है, b1 फिर c1 और फिर a1 फिर b1। तो b1 से शुरू हो रहा है तो चूंकि b1 तो b1 लिखा गया। फिर b1 के बाद चूंकि x को तो ढकना है ना, x इज टू बी कवर्ड, क्योंकि x से हम लोग शुरू कर रहे हैं तो x से शुरू कर रहे हैं तो x को छोड़कर यहाँ से लिखेंगे b1 और c1 लिखा गया। तो b1 के बाद c1, c1 के बाद फिर a1, i1 के बाद b1, मतलब b1 से शुरू हुआ फिर b1 तक चला जाएगा। उसी तरह b2 से शुरू हुआ b2 c2 a2 b2, b2 c2 a2 b2 लिख दिया गया। क्रॉस का साइन दे देंगे एंड आफ्टर गिविंग द साइन ऑफ क्रॉस वी शैल हैव टू मल्टीप्लाई, हमें मल्टीप्लाई करना होगा। जैसे x बाई तो b1 इंटू c2 माइनस b2 इंटू c1, यहाँ माइनस का साइन देंगे। फिर उसी तरह y बाई तो a2 c1 माइनस a1 c2, ये a1 c2। फिर 1 बाई तो a2 b1 a1 b2 सॉरी a1 b2 माइनस a2 b1। अब इसको इक्वलाइज कर देते हैं। नाउ we have to equalize this x by b1 c2 minus b1 c b2 c1, b2 ये b1 c2 minus b2 c1 is equal to, इसको इक्वलाइज कर देते हैं 1 अपॉन a1 b2 minus a2 b1। अब जैसे इसको हम लोगों ने किया, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। फिर x में इससे मल्टीप्लाई करेंगे, केवल इसी को ले जा करके उधर मल्टीप्लाई कर दीजिए। x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, b1 c2 माइनस b2 c1 बाई a1 b2 माइनस a2 b1। ये x का वैल्यू निकालने का ये फॉर्मूला हो गया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। अगेन और फिर इसको हम लोग y वाले को इक्वलाइज करते हैं, y बाई दिस a2 c1 माइनस a1 c2 इज इक्वल टू 1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1। नाउ वंस अगेन y इज इक्वल टू, तो ये जो होगा a2 c1, इसको चूंकि डिवाइड इधर जाएगा मल्टीप्लाई होगा तो 1 में मल्टीप्लाई होगा, तो 1 में मल्टीप्लाई होगा तो जितना है उतना ही हो जाएगा। तो a2 c1 माइनस a1 c2 बाई a1 b2 माइनस a2 b1। तो दिस इज डायरेक्ट मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड क्या है, इसमें हम x और y के वैल्यूज को डायरेक्टली प्राप्त करते हैं। कैसे निकालते हैं, तो x इज इक्वल टू b1 c2 माइनस b2 c1 बाई a1 b2 माइनस a2 b1। ये फॉर्मूला x के लिए और y के लिए ये फॉर्मूला हो गया। तो ये आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से x एंड y के वैल्यूज को निकालने का एक तरीका हो गया कि हाउ कैन वी कम to the conclusion or how can we come to the formula by using cross multiplication method। then students this is the method by what we can do। अब रही बात कि इसका इम्प्लीमेंटेशन क्या है, हम इसको करते कैसे हैं, सॉल्यूशन कैसे करते हैं। तो इसके सॉल्यूशंस को हम लोग एक दूसरे क्वेश्चन के साथ देखते हैं। then students in the same context I'm with the question from your exercise 3.5 NCERT, or this question is also given in RS Agrawal or other books also। इसलिए NCERT कहने का मतलब ये नहीं समझेंगे कि RS Agrawal का ये नहीं है। इसको हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड द्वारा सोल्व करना है। पहले इस बुक में क्या दिया उस क्वेश्चन को एक बार पढ़िए। इसमें कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैज यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन और इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन। पहले आपको चेक करना है कि किसका इसमें यूनिक सॉल्यूशन होगा, नो सॉल्यूशन होगा, इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशंस होगा। तीनों में से आपको पता है कि 3 तरह के सॉल्यूशंस होते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स में। तो इसका कौन सा सॉल्यूशन होगा, दैट इज टू बी फाउंड एट फर्स्ट। तो हम पहले इसको लिख लें, जो जनरल फॉर्म में लिखते हैं उसको लिख लें। इसको सॉल्यूशन में लिखेंगे तो 2x प्लस वाई और ये -5 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 जैसा हो गया। उसके बाद 3x प्लस 2y माइनस 8 इज इक्वल टू 0 हो गया। अब इसमें a1 क्या है, तो a1 को नोट कर लीजिए। a1 इज इक्वल टू दिस 2, b1 इज इक्वल टू b1, तो ये a1 है, a1x प्लस b1y, तो b1 इज इक्वल टू 1 है
एंड C1 इज इक्वल टू -5। उसी तरह A2 इज इक्वल टू 3, B2 इज इक्वल टू दिस इज 2 एंड C2 इज इक्वल टू -8। ये मतलब उसके कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म्स को हम लोगों ने लिख दिया। वी हैव जस्ट रिटन द कोफिशिएंट एंड कांस्टेंट टर्म्स of the given pair of linear equations. Now using cross multiplication method we have to do. Then using we shall write, पहले आप चेक कर लीजिए कि ये किसका इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशंस होगा या नो सॉल्यूशंस होगा या यूनिक सॉल्यूशंस होगा। हेयर अब यहाँ लिखेंगे हेयर A1 by A2 इज इक्वल टू 2 by 3, A1 2 है A2 3 है, B1 by B2 इज इक्वल टू 1 by 2। तो ये 2 by 3 और 1 by 2 इक्वल नहीं है, तो लिख सकते हैं सिंस A1 by A2 इज नॉट इक्वल टू B1 by B2, इक्वल नहीं है, देयरफॉर द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन विल हैव, अब दोनों इक्वल नहीं है तो आपको पता है कौन सा सॉल्यूशन होता है, यूनिक सॉल्यूशन। मतलब A1 by A2 जब इक्वल नहीं है तो उसका यूनिक सॉल्यूशन होगा, ये आपको पता है, दिस इज नोन टू यू ऑलरेडी। अब यूनिक सॉल्यूशन का मतलब होता है वन एंड ओनली वन सॉल्यूशन। अब इसको हम लोग करके देखते हैं कैसे यूनिक सॉल्यूशन होता है। लेट अस सी नाउ यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड वी शैल हैव टू राइट यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो आपको जो तरीका बताया था उसमें याद करने की ज़रूरत नहीं है आपको। फिर x y और 1 यहाँ डालिए। x से शुरू कर रहे हैं इसलिए हम A1 को छोड़ देंगे, B1 से शुरू करेंगे, B1 इंटू C2 या आप B1 C2 लिख दीजिए जैसे फॉर्मूला है B1 C2 माइनस, या डायरेक्ट ना लिख करके हम लोग पहले वो लिखें, B1 से शुरू करें, B1 के बाद C1, B1 हो गया, B1 C1 के बाद फिर A1 के बाद फिर B1 तक आ गए, फिर उसके बाद B2 C2 A2 B2 लिख दी। इसको बार बार लिखने से भी याद होता है, इसलिए आप चाहें तो इसको बार बार लिख सकते हैं या डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं एज यू विश। मैं इसको बार बार इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको प्रैक्टिस हो जाए। तो इसको फिर ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई कराने के बाद हम इसको लिखेंगे। अब कैसे लिखेंगे, नाउ x बाई B1 C2 माइनस B2 C1 हो गया इज इक्वल टू y बाई C1 A2, चाहे A2 C1 कोई भी लिखिए, C1 A2 ही लिखिए, माइनस C2 A1 हो गया इज इक्वल टू 1 बाई वंस मोर A1 B2 माइनस A2 B1 हो गया। अब इसके वैल्यूज़ को आप चाहें तो रख दीजिए डायरेक्ट, या जैसे सीधे लेकर के जाते हैं वैसे कर सकते हैं। जैसे इसके वैल्यूज़ को B1 यहाँ से खोज करके B2 जो है B1 C2 जो भी है उसको खोज करके लिख दीजिए, या आप एक स्टेप और आगे लेकर के जाइए, इसको ऐसे लेकर के जाइए, पहले x का x बाई B1 C2 माइनस B2 C1 इज इक्वल टू 1 बाई A1 B2 कॉन्स्टेंट टर्म से इक्वलाइज करा देते हैं माइनस A2 B1। अब इसके वैल्यूज़ को न लिखते हुए पहले x इज इक्वल टू डायरेक्ट ऊपर भेज दें B1, x इज इक्वल टू ये B1 C2 ऊपर चला गया माइनस B2 C1 बाई एंड दिस इज A1 B2 माइनस A2 B1, ये लिखा है। अब इसके वैल्यूज़ को रख दीजिए। अब यहाँ डायरेक्ट वैल्यू रख सकते हैं या इधर भी वैल्यूज़ रख सकते थे, आपकी जैसी इच्छा। यहाँ भी वैल्यूज़ रख करके हम डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते थे, यहाँ भी कर सकते थे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यहाँ भी रख करके कर सकते हैं। अब B1 क्या है तो B1 यहाँ चेक कर लीजिए 1 इंटू C2 क्या है तो C2 इज हेयर माइनस 8 माइनस B2 इज हाउ मच, B2 यहाँ है 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 किससे मल्टीप्लाई होगा C1 से, तो C1 इज -5, तो -5 से मल्टीप्लाई हो गया। इस तरह से आप मल्टीप्लाई कर दिए इसको बाय नीचे क्या है A1 B2, A1 क्या है, A1 इज 2 मल्टीप्लाइड बाई B2 इज 2, A1 इज 2 B2 इज ऑल्सो 2, तो 2 इंटू 2 माइनस A2 हेयर 3 गिवन 3 एंड B1 इज ऑल्सो गिवन, यू सी 1,
तो 1 कर लिए। अब इसको x इज इक्वल टू निकालना है, तो x इज इक्वल टू इसको मल्टीप्लाई कीजिए -8 में 1 से, तो -8। अब -2 और -5 मल्टीप्लाई होगा तो +10 हो गया, बाई 2 2 ज़र 4 -3, देन 10 -8 हो जाएगा 2, और 4 - 3 इज इक्वल टू 1, तो ये x इज इक्वल टू 2 वी हैव गॉट, x इज इक्वल टू 2। अब x इज इक्वल टू 2 आ गया तो फिर y वाले को भी कर सकते हैं। देन अब यहाँ y वाले को कर लीजिए, y इज इक्वल टू, तो y इज इक्वल टू डायरेक्ट जैसे इसको लेकर के आप यहाँ तक आए तो दैट डायरेक्ट y इज इक्वल टू ऐसे भी लिख सकते हैं, C1A2, मतलब इसको हम ऊपर भेज देंगे 1 से मल्टीप्लाई करके, C1A2 माइनस C2A1 माइनस C2A1 बाई ये A1B2 माइनस A2B1। अब इसके वैल्यूज़ को डाल दीजिए। C1 कहाँ है, तो यहाँ C1 है -5 मल्टीप्लाइड बाई A2 क्या है, तो A2 इज इक्वल टू 3 माइनस फिर C2 इज -8, तो -8 ब्रैकेट में डालिए मल्टीप्लाइड बाई C2 हो गया। अब उसके बाद A1 इज 2, तो 2 विल बी रिटन, ब्रैकेट क्लोज कीजिए। वंस मोर हेयर सी A1B2 2 B2 2 A2B1 A2 फिर 3 एंड B1 इज इक्वल टू 1। आगे फिर बढ़ाइए, 5 3 ज़र 15 -15 ये हो जाएगा, माइनस A2 ज़र 16, ये -16 इधर हो गया, बाई ये 4 - 3 हो गया, तो आगे फिर -15 प्लस 16 बाई 4 - 3 1, तो 16 - 15 1 बाई 1 इज इक्वल टू 1 आ गया। मीन्स यहाँ हम लोग दो वैल्यूज जो निकाले, x इज इक्वल टू, यहाँ लिख देता हूँ मैं, x इज इक्वल टू वी हैव गॉट हेयर 2, x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 1 वी हैव गॉट, y इज इक्वल टू 1। तो ये दो वैल्यूज हैं जो कि इसको रखने पर ये आपका इक्वेशन सेटिस्फाई होता है कि नहीं। लेट अस चेक इट। x इज इक्वल टू 2 2 ज़र 4, y 1 है तो 2 2 ज़र 4 1 5 हो गया। इसमें चेक कर लीजिए, 3 2 ज़र 6, y इज इक्वल टू 1 है तो 1 × 2 तो 2, 6 to 8। इसका मतलब x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 1, बोथ ऑफ द वैल्यूज सेटिस्फाई बोथ ऑफ द इक्वेशंस। दिस इज वाई both of the values means x is equal to 2, y is equal to 1 is 100% correct. So this is students, children, this is the method by what we have to do as per क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। इसको आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के नाम से जानते हैं क्योंकि आप क्रॉस करके ही या क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको करते हैं। आप डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं, डायरेक्ट ये फॉर्मूला अगर आप याद कर लेते हैं, x इज इक्वल टू ये वाला B1C2 माइनस B2C1 बाई A1B2 माइनस A2B1, और y इज इक्वल टू ये वाला फॉर्मूला आप याद कर लेते हैं जो यहाँ दिया हुआ, y इज इक्वल टू C1A2 माइनस C2A1 बाई A1B2 माइनस A2B1, तो भी आप बनाएंगे तो सही होगा। लेकिन ये हुआ कैसे, तो यही एक ये जो ट्रिक था, इस ट्रिक के माध्यम से हम लोग यहाँ तक आसानी से पहुँच सकते हैं और वी कैन सॉल्व द क्वेश्चन बाई यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। स्टूडेंट्स, देयर आर some questions, 4 questions in NCERT book as well as many questions are there in RS Agrawal's book। तो आप इसको बनाएंगे जहाँ कहीं भी किसी भी तरह की समस्या होगी तो never hesitate to ask, never hesitate to ask, never hesitate to comment. I'm always ready to help you. Just you need to move one step ahead. I'm always ready to move 4 steps towards you. Thanks a lot.